ٹھیک ہے، اب میں آپ کی دلیل نہیں سننا چاہتا، آپ مجھے بتائیں تو پھر آپ مسلم کے حدیث کے ساتھ کیا کریں گے، بخاری کے حدیث کے ساتھ کیا کریں گے کہ اس میں ہے کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے والد اور آپ کے والد جہنم میں ہیں۔ ہاں حدیث نمبر 203 کا آپ چاہیے؟ اس کا جواب دے دو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ نے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو، اور پھر ان کی حدیث جو بخاری میں ہے مسلم میں ہے ان ابی و اباک فی النار، کہ آپ لوگوں نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام استجیر باللہ جہنم میں، ان دو احادیث کا آپ کا کیا موقف ہے ان دونوں سے؟ جواب دیتا ہوں نا، میں جواب دیتا ہوں۔ جواب اس حدیث کے میرے نزدیک اور علماء کے نزدیک الفاظ درست نہیں ہیں۔ امام سیوطی نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے اور ایک نہیں۔ بھائی تو آپ بخاری کو رد کرتے ہیں، بخاری مسلم رد کرتا ہوں، یہ دونوں حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے اس پہ اتفاقاً نقل کیا نا۔ ایک بار میری بات سن لیں، ایک بار میری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ نے چانجہ صاحب کے ساتھ بھی یہ حال کیا کہ ان کو بات کرنے نہیں دیا، اب مجھے بات کرنے دیں، جب میری بات ختم ہو جائے تب آپ کوئی بھی سوال بچاؤ تو پھر میں جواب دینے کا قائل ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب میں بولوں، ٹھیک، بسم اللہ بات کریں۔ حدیث میں بتاؤں کس طرح کہ بندہ آیا، ٹھیک ہے، میرا باپ کدھر ہے؟ اینا ابھی، فرمایا فی النار، جہنم میں ہے، وہ یہودی جو جہنم میں تھا وہ یہودی تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے والد کدھر ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بات سے اعراض فرمایا، جواب نہ دیا، اور فرمایا جب بھی کسی کافر کی قبر سے گزرو تو اسے جہنم کی خوشخبری دینا، اور پھر بعد میں پھر آئے وہی شخص جس نے پوچھا حضور سے میرا باپ کدھر ہے، وہ شخص پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اور رسول اللہ نے اور کہنے لگے رسول اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، اب میں جس قبر سے گزرتا ہوں تو مجھے اس جہنم کی خوشخبری دینی پڑتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پہ انی اباکم فی النار کے الفاظ ہی نہیں ہیں، انی اور الفاظ نہیں ہیں، اور یہی روایت ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس پہ اگر آپ میرے دلائل مانگتے نا، میں قرآن سے دلائل دیتا۔ روایت کو قرآن کے میرے بھائی آپ دیکھیں، آپ کیونکہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت کے سردار ہیں، تو آپ کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے آ کے ثابت کریں کہ وہ والدین مسلمان ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کہتے ہیں وہ جنت کے سردار ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ احادیث کا جو آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے ان کا جواب دے دیں۔ بخاری مسلم آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، میں مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اس حدیث کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے حدیث پڑھنے کی؟ نہیں، پہلے مجھے میرا جواب کلیئر کرنے دیں، پھر آپ اپنا جو جواب ہو جو بھی بات آپ نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے وہ غلط پڑھی ہے، مجھے اجازت دیں میں آپ کو صحیح حدیث دکھاؤں، حدیث کے اصل الفاظ مسلم سے دکھا دیتا ہوں، آپ پڑھ دیکھ لیں اس کو، اپنے فون پہ دیکھ لیں اور پھر اس کا جواب دے دیں۔ بھائی ایک دفعہ بات سنیں، آپ نے یہی حدیث میرے سامنے پہلے بھی رکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس وقت میں چپ کر کے میں نے صرف اس بات پہ یہی کہا تھا کہ اس پہ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے، اور نہ ان کو ہم ان کو جنتی تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کا عقیدہ جنتی کچھ کا عقیدہ جنتی نہیں ہے، تو ہم اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کس کے مقلد ہیں؟ آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے آپ نے ایک روایت رکھی ہے تو مجھے فی الحال تو اس کا جواب دینے دیں۔ تو روایت پڑھو، روایت کے نص الفاظ پڑھو پھر اس کا جواب دے دینا، روایت کون سی ہے؟ پچھلی مرتبہ آپ نے اس پہ بہت بڑا کذب کیا تو میں آج آپ کا وہ کذب سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جی روایت کا نص الفاظ پڑھیں آپ اور بتائیں کہ میں نے کیا جھوٹ بولا۔ آپ کہہ رہے ہو اسی پہ ہی آ جاتے ہیں، جس پہ آپ کہہ رہے ہو اسی پہ آ جاتے ہیں، اس کی سند بیان کرتا ہوں میں، سند کے معاملے میں آ جاتے ہیں آپ۔ چلو بخاری مسلم کے سند پہ آپ جرح کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ انس بن مالک سے ثابت البانی نے روایت کیا، ان سے حماد بن سلمہ نے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پہ سند یہ ہے، ایک جگہ پہ سند یہ بھی ہے، انس بن مالک سے ثابت البانی نے، اور پھر ان سے امام معمر نے وہ کیا ہے، مطلب اس کو روایت کیا امام معمر نے، جہاں بھی یہ حدیث روایت کی ہے وہاں یہ لفظ کہیں بھی نہیں ملتے، میرے باپ بھی جہنم میں، یہ وہاں پہ کہیں بھی لفظ نہیں ملتے۔ اچھا میں اگر دکھا دوں، مجھے پڑھنے دو نا، میں حدیث دکھا دیتا ہوں، بول اس میں غلط میں نے کہاں پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ دکھا دوں حدیث؟ بھائی آپ حماد بن سلمہ کی حدیث پڑھتے ہو، امام معمر کی کیوں نہیں پڑھتے؟ حماد بن سلمہ اور امام معمر بھائی مسلم کی جو مجھے حدیث پڑھنے دو، میں حدیث پڑھوں گا، پھر آپ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بات میں نے غلط پڑھی ہے۔ حماد بن سلمہ کی آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو مجھے فی الحال تو مجھے اس کی سند پر بات کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ سند پر مجھے اور پہلے متن تو پڑھنی چاہیے نا کہ پتہ چلے کہ متن کیا ہے، متن پڑھو پھر سند پہ بات کرو۔ متن تو آپ نے، میں کہہ رہا ہوں نا، مسلم سے روایت نمبر 203 آپ نے وہ کرنی ہے، اور حماد بن سلمہ سے وہ روایت ہے، آپ نے وہی روایت انس بن مالک سے ثابت البانی سے۔ چلو بھائی 3 منٹ تم بات کرو، 3 منٹ میں خاموش، بسم اللہ، تو جو مرضی کہنا کہہ۔ امام معمر نے یہ جہاں
भी रिवायत की है पूरे ज़ख़ीरा अहदीस के अंदर ना कहीं भी नहीं मिलता कि ये मतलब ये लफ्ज़ हो, ठीक है। इसके बाद असूल अहले सुन्नत जो है ना, असूल शाशी के हिसाब से ना किताबुल्लाह के मुकाबले में खबर वाहिद आ जाए और टकराए तो हम खैर खबर वाहिद को छोड़ देते हैं। मतलब ये खबर वाहिद है, हमाद बिन सलमा की ये जो रिवायत है ये खबर वाहिद है और किताबुल्लाह के टकरा रही है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब असूल अहले सुन्नत के मुताबिक, उलूम हदीस के असूल के मुताबिक दूसरा असूल अब जरा और तादील का बोल रहा हूँ। ये मुकदमा इब्न सलान भी पढ़ सकते हैं इसके मुकाबले ये मुकदमा इब्न सलान में भी लिखा हुआ है, मुकदमा शेख अब्दुल हक में भी लिखा हुआ है, ये जरा और तादील का असूल। अगर सिक्का रावी अपने से ज्यादा सिक्का रावी की मुखालफत करे तो वो रिवायत शाद हो जाती है, वो कबूल नहीं है किसी सूरत भी, ठीक है। और हमाद बिन सलमा जो हजरत मामर की मुखालफत कर रहे हैं, सिक्का रावी आपस में टकरा रहे हैं, ये रद्द रिवायत है। इमाम ज़ाबी की सैरुल अलाम नुबला किताब में पहली जिल्द में रावी नंबर 826 हमाद बिन सलमा का जिक्र है। मैं ये नहीं कहता कि हमाद बिन सलमा जी मतलब ज़ईफ रावी हैं, ये नेक थे और अल्लाह ने इनको मौत जब दी तो ये सजदा की हालत में थे। तो इसमें इमाम ज़ैबी की किताब है ये जो मैंने अभी बयान किया, इसमें इमाम ज़ैबी फरमाते हैं कि मेरा कौल ये है कि वो इल्म के समंदर थे, लेकिन उन्होंने जो रिवायत की वसअत की है, इनकी कुछ रिवायत में वहम पाया जाता है और ये जो रिवायत आप बयान कर रहे हैं ये भी उन्हीं रिवायात के अंदर आती है। इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुदख्खल के अंदर फरमाते हैं कि बाज़ अहबाब ने इनके हाफजे के बारे में बातें की हैं कि इनका हाफजा आखिरी उम्र में कमजोर हो गया था। कहते हैं इमाम मुस्लिम ने असूल की रिवायात अकीदा, असूल यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अकीदा बोला गया, असूल की रिवायात में एक भी हदीस हमाद बिन सलमा से नहीं ली। अब आप कहेंगे कि ये तो हदीस ली है जो क्या नाम है नबी के वालिदैन वाली, ये भी तो अकीदे में आती है, लेकिन ये इमाम मुस्लिम के नजदीक शायद के इमाम मुस्लिम के नजदीक ये अकीदा ना हो। तो इमाम बुखारी भी बहुत कम ही इनसे रिवायात लेते हैं, शायद एक या दो रिवायत लाए हैं इनसे। और इमाम अहमद बिन हम्बल भी कहते हैं कि जिन रिवायत में हमाद बिन सलमा सका रावियों की मुखालफत करे वो रिवायत इनसे नहीं ली जा सकती। ये इसी इमाम ज़ाबी की सैर अलाम नुबला किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। पहली जिल्द में रावी नंबर 826 हमाद बिन सलमा है। तो अब आप करें बात, मैंने सनद पर बात कर दी है, मैंने दो असूल भी बयान किए हैं अहले सुन्नत के, अब आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी मुझे आप बात करते जाएं, भी आपके पास टाइम है। और अपने इमाम अच्छा तो और मैंने इस हदीस में गलत बयानी क्या किया था भाई, वो तो भी बताओ ना। मैंने जो गलत बयानी की थी उसकी तरफ आपने बोला था मैंने कोई गलत बयानी की इस हदीस में, वो भी तो बताना। आपने एक शाद रिवायत हमारे अकीदे पर फिट किया, क्यों किया? ओके मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये कह रहे हैं शाज़ रिवायत है। हाँ। मेरी बारी है, मैं बात करूं? ओके भाई मोहतरम नाज़रीन, पहली बात यह है ये किताब है सही मुस्लिम, ये मुस्लिम इब्न हज्जाज कुशैरी निशापुरी साहब की किताब है। आपका इसमें गिरामी क्या था भाई, मैं भूल गया आपका नाम? वसीम भाई। किताब सही मुस्लिम दारुल फिक्र, यहाँ पर सफ़ा नंबर 201 में मुस्लिम साहब फरमाते हैं, मुस्लिम को झूठे हैं या मोतबर हैं आपके नजदीक? खुद मुस्लिम बजाते खुद। भाई मुस्लिम साहब झूठे हैं या बड़े आलिम दीन है, सच्चे हैं? कौन से हैं भाई? क्यों जवाब नहीं दे रहे भाई? ये जवाब दो ना, मुस्लिम झूठा है या सच्चा है? मुस्लिम तो सच्चे हैं, हमारे नजदीक तो सच्चे हैं। हाँ सच्चे हैं। तो ये मुस्लिम खुद फरमाते हैं, देखो ये बाब है, बाब सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तशहुद, इससे कुछ पहले कहते हैं लैस कुल्लु शैइन इंदी सहीहन वज़अतुहु हा हुना। किताब मुस्लिम में मेरे इज्तिहाद के मुताबिक जो हदीस सही है मैंने वो हदीस में दाखिल नहीं किए हैं कि जो मेरे नजर में सही हो मैं उस किताब में दाखिल करूं। इन्नमा वज़अतुहु हा हुना मा अजमउ अलैहि, इस किताब में मैंने सिर्फ वो अहादीस शामिल की हैं जो सब मुजमाउन अलैहि हैं। समझ में आई ना बात आपको अजीजों? यानी एक ऐसा हदीस है जो मुस्लिम के इज्तिहाद में मुस्लिम की नजर में सही है, दूसरे उलमा शायद उसको सही नहीं मानते, मुस्लिम ने उस हदीस को किताब सही मुस्लिम में दाखिल नहीं, सिर्फ इजमाई हदीस को उसने दाखिल किया। अब मुस्लिम ये खुद कहता है सच्चा आदमी है, उसने झूठ नहीं बोला, बड़ा आलिम भी है। ये किताब है सही मुस्लिम बिशरह नववी, यहया इब्न शरफ नववी की किताब शरह सही मुस्लिम, जिल्द नंबर 1 चाप दारुल फिक्र। यहाँ पर सफ़ा नंबर 24 में मुकद्दमे में, अपने किताब के मुकद्दमे में फरमाते हैं फस्लुन इत्तफ़क़ल उलमा रहिमहुमुल्लाह अला अन्ना असह अलकुतुबी बाद अलकुरान अलअज़ीज़ अस्सहीहानी अलबुखारी व मुस्लिम। फरमाते हैं कि सब उलमा का इजमा है, ठीक है ना। आप कहते हैं ये हदीस शाज़ है, ये मुस्लिम खुद फरमाते हैं कि मेरी किताब की जितनी अहादीस है न सिर्फ सही है बल्कि इजमाई है। और यहया इब्न शरफ नववी फरमाते हैं कि सब उलमा का इजमा है कि असहुल कुतुब बाद अलकुरान अलअज़ीज़, कि सबसे सही तरीन किताब कुरान मजीद के बाद कौन सी किताब है? सहीहान बुखारी व मुस्लिम। ये कुरान के बाद सब दुनिया में सबसे जो सही हदीस है वो यही है, बुखारी
बुखारी मुस्लिम। ये किताब है अत-तक़रीब व तयसीर लिमारिफत सुनन अल-बशीर व नज़ीर, नववी साहब की किताब। यहाँ पर सफ़ा नंबर ही नहीं है, सफ़ा नंबर फरमाते हैं अल-सानिया में अव्वल मुसन्नफ़ फ़ी सहीह अल-मुजर्रद सहीह अल-बुखारी थुम्मा मुस्लिम, खालिस सही अहादीस में सबसे पहले जो किताब तस्नीफ की गई है वो मअमर इब्न राशिद अज़दी की किताब नहीं है, वो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ नहीं है, मुसन्नफ़ इब्न शैबा नहीं है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल नहीं है, किताब मुअत्ता मालिक नहीं है। कौन सी किताब है सबसे पहली? किताब बुखारी है और उसके बाद मुस्लिम। वहुमा असहुल कुतुब बअदल कुरान, बुखारी मुस्लिम तमाम किताबों के कुरान के बाद क्या है सबसे सही किताब कौन सी है? यही किताब है बुखारी मुस्लिम की किताब। ये किताब है मुक़द्दिमतु इब्न सलाह अश-शहरज़ूरी। इस किताब में सफ़ा नंबर 17 में फरमाते हैं कि सबसे पहले सही में बुखारी ने तस्नीफ की है, फिर मुस्लिम इब्न हज्जाज ने तस्नीफ की है सही कुतुब में, सही अहादीस में। भले व किताबहुमा असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल अज़ीज़, और तमाम किताबों में सबसे असह सही हदीस कौन सी है? तमाम किताबों में कुरान के बाद सबसे सही किताब कौन सी है? बुखारी मुस्लिम। ये अल-हुज्जतुल बालिगा लिअब्दुर्रहीम अद-दहलवी, शाह वलीउल्लाह दहलवी जो है अब्दुर्रहीम वलीउल्लाह शेख अहमद इब्न अब्दुर्रहीम दहलवी, शाह दारुल जैल। इस किताब में सफ़हा नंबर 232 में फरमाते हैं कि बुखारी मुस्लिम भले अम्मा सहीहान इत्तफ़क़ल मुहद्दिसून, सब मुहद्दिसीन का इजमा है अला अन्न जमीअ मा फीहिमा मिन अल मुत्तसिल अल मरफू सहीहन बिल क़त्अ, जो उसमें हदीस की सनद मौजूद है तो वो क़त्अन सही है। व अन्नहुमा मुतवातिरान इला मुसन्निफिहिमा व अन्नहु कुल्लु मन यहूनु अमरहुमा फहुव मुब्तदिउन मुत्तबिउन गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो शख्स बुखारी मुस्लिम की किसी हदीस को रद्द करे, उनकी तज़ईफ करे, वो बदअती है और गैर सबील मुमिनीन का पैरोकार। अब जब ये साबित हुआ तो मेरे मोहतरम भाई, जब इस किताब के अहादीस आपके उलमा के नजदीक बिल इजमा सही है और मुस्लिम ने खुद भी तस्रीह किया है कि मैंने सिर्फ सही अहादीस इस किताब में दर्ज नहीं किया, मैंने वो सही अहादीस जो इजमाई है उनको दर्ज किया है, तो अब कहते हैं ये किताब है सही मुस्लिम दारुल फिक्र। इस किताब में मेरे मोहतरम नाज़रीन यहाँ पर सफ़हा नंबर 127 में मुस्लिम साहब ने ये इन्वान लिखा है, बयानु बाबू बयान अन्न मन मात अला अल-कुफ्र फहुव फिन्नार, जो कुफ्र पे मरता है वो जहन्नम में। वला तनालु शफाअतुन वला तनफउ क़राबतुल मुक़र्रबीन, उसकी शफाअत नहीं होती और उसको किसी की रिश्तेदारी उसको फायदे नहीं पहुंचाती। हदीस की सनद से हम फारिग हैं भाई, सनद जब इजमाई तौर पे सही है, आप मुस्लिम की सनद पे नक़द करते हैं और खुद कहते हैं कि मुस्लिम खुद सच्चा आदमी है और मुस्लिम खुद शहादत देता है कि इस किताब के अहादीस सब इजमाई तौर पे सही है, और आपके उलमा ने शहादत दी है कि सही तरीन किताब है कुरान के बाद ये सबसे सही तरीन किताब है ये और बुखारी, और इसके सब अहादीस सही है। जब सब ने शहादत दी, इजमा किया है, तो फिर आपका कोई पोजीशन है ही नहीं इजमा के मुकाबले में। आपने कहा कि मैंने हदीस गलत पढ़ी, एक शख्स आया या क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन अबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद कहाँ हैं? एक शख्स ने उनसे पूछा, क़ाल फिन्नार, फरमाया कि जहन्नम में है वो। फलम्मा क़फ़्फ़ा दआहु फ़क़ाल, जब उसने पीछे रुख किया है, पीठ मोड़ के चलने लगा, तो उसको वापस बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आप लोगों ने नकल किया, इन्न अबी, बेशक मेरा बाप, बेशक मेरा बाप। उनका बाप कौन है? बिला शक बिला रैब उनका बाप हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। व अबाका, और तेरा वालिद, दोनों जहन्नम में नस्तजीरु बिल। फिर इसी मुस्लिम में सफ़ा नंबर 442 में बाब इस्तिअज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु अज़्ज़ व जल्ल फी ज़ियारत क़ब्र उम्मी, हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इज़्न मांगा है, इजाजत मांगा है कि अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत चाहता हूँ। तो ये इन्वान है, इस तर्जुमा है, इन्वान है इस चैप्टर का। हदीस अबू हुरैरा से है, अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तअज़नतु रब्बी अन अस्तग़फिर लिउम्मी फलम याज़न ली, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब मांगी, इजाजत मांगी, अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने वालिदे माजिदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इस्तिग़फ़ार करूं। नस्तजीरु बिल्लाह, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी और मैंने तलब किया है इजाजत के उनकी कब्र की ज़ियारत करूं, उनकी कब्र का दीदार करूं, विजिट करूं, तो विजिट करने की मुझे इजाजत मिली। इस हदीस को नकल करने के बाद नववी साहब किताब मुस्लिम में जिल्द नंबर 4 चाप दारुल फिक्र तब सनत 2000 बैरूत लिबनान में फरमाते हैं, इस्ताज़न तो वही बाप जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मैंने अपने बाप की मैंने अल्लाह से तलब इजाजत मांगा है कि अपनी वालिदा के लिए इस्तिग़फ़ार करूं, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, और मैंने उनके कब्र देखने की इजाजत मांगी है तो अल्लाह ने इजाजत दी है। फीही जवाज़ु ज़ियारतिल मुशरिकीन फिल हयाति व क़ुबूरिहिम बअदल वफ़ात, इस हदीस में इस बात की इजाजत है कि आप मुशरिकों की आप दीदार कर सकते हैं, चाहे वो जिंदा हो या मर गए हो तो कब्र में। लिअन्नहु इज़ा जाज़त ज़ियारतुहुम बअदल वफ़ाति फफ़िल हयाति औला, क़ाल अल्लाह तआला व साहिबुहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई दुनिया में भी आप साहिबुहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, के वालिदैन के साथ दुनिया में नेकी करो। तो अगर दुनिया में उनकी मुलाकात की इजाजत है तो कब्र तो
زندگی میں اگر اجازت ہے تو قبر میں بھی اجازت ہے کہ ان کے قبر کی دیدار کیا جائے. وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار, اس حدیث میں منع ہے. کون سی حدیث ہے؟ حدیث وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں والدہ کی استغفار کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے اجازت نہیں دی. اس حدیث میں منع ہے کہ کوئی شخص کافر کے لیے استغفار کرے. تو بھائی یہ آپ کی رہی بات آپ کی سند کی. اب یہ بہت سارے کتب میں ہے اور روایات وغیرہ, میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا.